हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम +2 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑन दिस चैप्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट इज गोइंग ऑन दिस कंसेप्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी हैव डन 2 lectures on this concept. This is the next lecture. Total on this chapter lecture number 8. Exercise in NCERT book 6.2 question up to 10 6.2 has been done. Complete हो गया 10 क्वेश्चन तक। अब 11th क्वेश्चन से आगे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 11 इज प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1. We know if any function on any interval neither increasing nor decreasing, it means on that whole interval it is not increasing everywhere and it is not decreasing everywhere. In some part of that interval it is increasing and in another part it is decreasing. So by the theorem we can say it is neither increasing nor decreasing on the whole part, on the whole that part, on whole interval we can say. So -1 to 1 we have to prove neither increasing nor decreasing, means that here two part may be here -1 to 0 and 0 to 1. Two part maybe on n1 is increasing, otherwise decreasing. So we can say by theorem it is overall -1 to 1 is neither increasing nor decreasing. Okay, now prove that. So means we have to see that derivative method we have to apply to check where is increasing, where is decreasing. Okay, then so first derivative test, using first derivative test. Okay, we can write or directly we can do, okay, using first derivative test. Okay, first derivative, first derivative test. What is this? We know if derivative is greater than equal to 0 on any interval, then it is increasing on that interval. So we should take derivative of this function with respect to x. F dash x is equal to chain rule, derivative of x square 2x and minus 1 and plus 0, this. So this we have to say for increasing, strictly increasing, greater than 0. We have to say for strictly increasing, for strictly increasing. Okay, we know this test. Okay, if derivative is greater than 0, then strictly increasing. For strictly increasing, we know. So we have to simplify this. So 2x is greater than 1, minus 1 will shift that side, then this implies x greater than 1/2. Okay beta, so greater than 1/2, increasing, strictly increasing. Now you can check what less than 0 कहाँ है, okay, डिक्रीजिंग कहाँ है. अब इस इंटरवल पर ये तो इंटरवल हो गया, ग्रेटर देन हाफ का मतलब दिस इम्प्लाइज this x belongs to
अब ग्रेटर देन मीन्स 1/2 to infinity. ओके, दिस इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आ गया इंटरवल. एंड ये कहाँ डिक्रीजिंग है? एंड 2x -1 यानी डेरिवेटिव लेस देन 0 for we have for strictly decreasing. ओके, v नॉट डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 फर्स्ट डेरिवेटिव. तो वी आर टेकिंग लेस देन 0 for decreasing and finding interval, solving, then x is shifting that side -1 +1, x less than 1/2. So strictly decreasing means this implies on less than 1 means x belongs to minus infinity to 1/2. It is decreasing. On this strictly decreasing. Okay. Then तो इट मीन -1 to 1. सी दैट -1 कहाँ बन गया? इसमें बन गया बेटा -1. ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ? -1 से हाफ. इट मीन्स दिस इम्प्लाइज वी कैन से कि -1 इसी में -1 से हाफ ये क्या है? कहीं भी जीरो नहीं है इस पर. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग and this implies on greater than half means half to 1 strictly increasing. So from first and second, so this implies by theorem from first comma second fx is neither increasing on whole. ठीक है, by theorem neither strictly increasing. ओके बेटा, neither function fx is strictly increasing nor decreasing on whole part of that -1 to 1 by theorem. ठीक है, होल पार्ट के दो पार्ट बन गए बेटा. -1 to 1 दो पार्ट बन गए, -1 to हाफ एंड हाफ टू 1. ओके, दिस इज strictly neither strictly increasing nor decreasing, because एक पार्ट पे strictly increasing है, दूसरे पार्ट पे decreasing है. So in whole part neither increasing nor decreasing by theorem. Now question next, question number 12.
in NCERT book, question number 12. What is question 12? See that yes, question 12. Which of the following functions are decreasing on 0 to pi by 2? इतने फंक्शन है. Which? Option question. Decreasing. Which function is decreasing? Which is decreasing? On 0 to pi by 2. First quadrant. In first quadrant, cos x, understand, we know directly cos x function, directly basic method, without derivative also we can check. It is option question. A part cos x x बढ़ता है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया. ओके, x बढ़ता है तो y घटता है, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. कोस एक्स वैल्यू कम हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है x के बढ़ने पर. ओके, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ए पार्ट cos 2x on this interval, understand. तो 2x is this. ओके बेटा, 2x is this, then x 0 to pi by 4. तो between 0 to pi by 4 cos 2x, this function also decreasing function. Asking which one? Cos 3x also decreasing function. And then 10x is not decreasing, it is increasing function. If x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, तो increasing. ये ऑप्शन क्वेश्चन है. डायरेक्ट यू कैन डू बाय द जनरल. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो. ओके, इफ एंगल बढ़ता है तो कौन किसकी वैल्यू बढ़ती है, वी नो दैट. ओके, तो डायरेक्टली यू कैन से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऑल these are decreasing function. ठीक है. अब अगर x भी बढ़े और y भी बढ़े, x भी बढ़े y भी बढ़े, तो इंक्रीजिंग हो जाता है. ठीक है. y मीन्स फंक्शन की वैल्यू. y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कोस 2x, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कोस 3x. तो ये तीनों ही फंक्शन कोस फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, वी नो. ओके, एक 0 से पाई बाई 2 कह रहा है, फिर इसमें 2x डोमेन है, तो 2x 0 टू पाई बाई 2 है, तो x जो है वो 0 से पाई बाई 4. देन आल्सो वी नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 टू अप एनी डिग्री अप टू 90 डिग्री इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सो ऑल 3 डिक्रीजिंग डन. तो ए बी सी आंसर ए बी ऑप्शन एंड सी आर करेक्ट. इन पर ये डिक्रीजिंग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Question 13 is, on which of the following intervals is the function f given by fx is equal to x power 100 plus sin x minus 1 decreasing. ये भी ऐसे ही चेक करना है. ऑप्शन है इसमें भी, ए ऑप्शन. फंक्शन लिख देता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 13, इजी क्वेश्चन. फंक्शन क्या है इसमें 13 में? एफ एक्स इज इक्वल टू x power 100 without derivative, direct we can check, plus sin x and minus 1.
डेरिवेटिव मेथड आल्सो वी कैन अप्लाई, तो यहाँ डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर लें, ठीक है। ऑप्शन वी कैन चेक, तो डेरिवेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, डेरिवेटिव इज 100 into x power 99, x power n derivative, and derivative sin x cos x, डेरिवेटिव 1 इज 0। ओके, ये डेरिवेटिव हो गया बेटा। ए ऑप्शन क्या है ऑप्शन, अब ये क्या चेक करना है बेटा 13th में, इंटरवल ऑन विच इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस दैट डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहाँ है ये ध्यान देना है आपको। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन आपका है 0 to 1, 0 to 1, ये डिक्रीजिंग है क्या, डिक्रीजिंग में चेक कर सकते हैं, चेक, चेक फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए चेक करो, तो हाफ ले लो एक्स की वैल्यू, तो 100 इंटू हाफ पावर 99 प्लस कॉस ऑफ हाफ ए, ठीक है, cos of half let a, then a is positive, यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स इन द रेडियन π/3, तो π/3 रियल नंबर पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ओके, सो ये नो, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, ये ग्रेटर देन 0, नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग हो गया। ए पार्ट, बी पार्ट चेक करेंगे, बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें 13 में, π/2 से पाई, अब π/2 से पाई है आपका, π/2 टू पाई, इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट भी ये नेगेटिव है, ओके, ये नेगेटिव है, cos ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, बट ये प्लस, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव एंड इंटू 100, तो दिस इज ओवरऑल, ये नेगेटिव कहाँ है, बिटवीन 0 to 1, यानी दिस वैल्यू लेस देन 1, -1 तक, 0 to -1 नेगेटिव, 0 to -1 to 0, ओके बेटा, दिस वैल्यू नेगेटिव, और ऐड होना है, ये बहुत लार्ज पॉजिटिव है, 100 इंटू पॉजिटिव मोर देन 100, तो मीन्स दिस इज आल्सो ओवरऑल पॉजिटिव, सो दिस आल्सो नो, ओके। डिक्रीजिंग बताना हमें, क्या बताना है इसमें, डिक्रीजिंग कहाँ है, तो सी पार्ट चेक करो, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन दिस आल्सो ऑन इन 0 to π/2, इन फर्स्ट आल्सो नो आंसर, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, डी पार्ट नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी पार्ट नहीं है, तो डी पार्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके बेटा, इज करेक्ट। बी केयरफुल, कोई भी पार्ट इनमें से ए ना बी ना सी, कोई भी यहाँ डिक्रीजिंग नहीं है, ये सब इंक्रीजिंग आ रहे हैं, सो दैट्स वाई ओनली करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ओके। डिक्रीजिंग किसी पर डिक्रीजिंग नहीं है, तो नाइन डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, for what values a the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on this. Question 14, fx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 is increasing. Okay, question 14 is saying that fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing function on interval this. Find the value of a. Increasing on closed interval 1 to 2. Increasing on this, find a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, तो नाउ डेरिवेटिव सॉल्यूशन. तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस a प्लस 0. दिस इज डेरिवेटिव. तो ये इंक्रीजिंग गिवन है, तो इंक्रीजिंग है मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. दिस फॉर इंक्रीजिंग, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग गिवन फॉर इंक्रीजिंग. ओके बेटा, फॉर इंक्रीजिंग एज गिवन. तो फाइंड ए गिवन. इंक्रीजिंग गिवन, तो पुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ऑन दिस इंटरवल एक्स क्या है हमारा. अब एफ डैश, अगर यहाँ पर 1 लेता हूँ मैं वैल्यू, एफ डैश 1, एफ डैश 1 क्या बन गया हमारा 2 इंटू 1 2 प्लस ए. एफ डैश 1 ये बन गया. एफ डैश 2, एफ डैश 2 क्या है हमारा, वैल्यू 2 पुट किया इसमें, पुटिंग एक्स इजिकल टू 2, देन 2 2 जा 4 प्लस ए. ये वैल्यू है दोनों. ठीक है बेटा, ये दोनों ही क्या हैं, ग्रेटर देन 0 है. ये भी ग्रेटर देन 0 है अकॉर्डिंग टू गिवन. ग्रेटर देन इक्वल 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई टेकन. भाई x की वैल्यू 1 पुट किया बिकॉज ऑन इंटरवल 1,2 इट इज ऑन, यहाँ भी लिख लें ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2. ओके, ये वैल्यू आपकी आ रही है. तो अब ये ग्रेटर देन 0 है, 4 प्लस ए पर भी ग्रेटर देन 0 है, 2 प्लस ए पर भी ये ग्रेटर देन 0 है. एंड बिटवीन अगर हम ले 0 एंड if you are check in between also, because it is increasing on this, so if at x is equal to 0 and f dash 0 you are putting here 0 value, so 2 into 0 plus a, this is a, this also greater than equal 0. Okay, अब check from these three what will be वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अब ध्यान देना है. तो अब इसमें क्या होगा, देखिए 2 पर इनके बीच में है, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, 2 पर भी ग्रेटर देन 0 बनेगी, तो ये ग्रेटर देन 0 है दोनों. तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल -4 and a greater than equal -2 and this everywhere greater than 0.
एंड ग्रेटर देन 0। तो अब ध्यान देंगे मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट वैल्यू पूछता है ग्रेटर देन -2 ऑन नंबर लाइन यू चेक -4 कहीं -2 and 0 these three values, okay, this and this. So now here check what saying at least value of a. What is at least का मतलब कम से कम वैल्यू ऑफ a क्या होगा at least a। अब ग्रेटर देन -4 इधर हो गई सब वैल्यू, ग्रेटर देन -2 यहाँ से इधर हो गई, ग्रेटर देन 0 सब इधर हो गई ये। एंड तो कॉमन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन होगा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन -2 भी कॉमन है, ठीक है। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू एटलीस्ट वैल्यू वो भी ठीक है, ये वैल्यू भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट किस पर, ये ग्रेटर देन 0 है तो एटलीस्ट -4, तो ये ग्रेटर देन -4, ओके। ए शुड बी ग्रेटर देन -4 में सब आ गई में, तो ए ग्रेटर देन इक्वल -4, तो ग्रेटर देन इक्वल इससे बड़ी एंड इक्वल -4, तो एटलीस्ट वैल्यू -4, तो ए इज -4। क्वेश्चन 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ये वैल्यूज आ गई ए की, ये एंड ये, व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो ए इज ग्रेटर देन -4, this, तो इट मीन्स हेयर वी कैन से दिस एंड दिस एंड दिस एंड many values होल एवरीवेयर, -3 पर भी, -3 पर भी ग्रेटर होगा, तो ये सबसे छोटी वैल्यू इनमें -4 है, तो अगर एटलीस्ट पूछे तो -4, अदरवाइज इन सभी पर ये -4, ए ग्रेटर देन -4, ये वैल्यूज। आंसर वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मीन्स ए बिलोंग्स टू, जब वैल्यूज है तो ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 टू इनफाइनाइट ग्रेटर देन 0, सब ए की ग्रेटर देन 0, ठीक है, दिस वैल्यू। नेक्स्ट, तो लाइक दिस यू कैन डू, easy to do, like, share and subscribe the channel and send the video, watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the other contact and guide them, they must watch and like and share and send the feedback in the comment box, okay, done, thank you.